Hi, I'm Shalini Bhardwaj. You all are watching ITV Networks Medically Speaking. Today we are going to discuss about double mutant variant. So what exactly is double mutant variant? For this, we have on our panel Dr. Rakesh Mishra, who is a director of CCMB CCIR Labs. Sir, I just wanted to know what exactly is double mutant variant and how it is going to affect us in future. So double mutant variant, as the name suggests, has two changes in its genome. One, L is converted into R at 452 position, and in one E is converted into Q at 484 position. So when these two mutations are together, we are calling it double mutant. And what is observed is that in cases that we have sequenced the genomes, these two mutations are going together. So that way it's giving a signature to a new variant. And particularly in Maharashtra, about 20% of the cases are due to this new variant as of now. Although in other states, it's not very prominent, it's 1-2% or even less. Okay, sir, how it is going to affect, sir, and who is responsible for this mutant variant? Uh, Responsible, virus mutates in natural way, and if we allow the virus to spread, then it will have more chance to mutate. So and only people are allowing it to spread, so people are responsible in that way. But why this is natural process, so we should keep that also in mind. And the as far as its problems are concerned, since even in Maharashtra, where it is seen in a highest proportion, which is only 20%, that means 80% of the cases of Maharashtra are not because of this variant. So that means this variant, and other states we don't see this variant so much. So this means this variant is not responsible for the recent rise in the cases. Something else is responsible, which we can come in a minute. Also, we have not seen increased symptoms or mortality. In fact, more and more people are asymptomatic, now more than 85%, and mortality has decreased. So, which means we understand the disease better, and proper, better care is being given by the doctor. That's why mortality is less. And so this also means that this variant is it's like other circulating variants, is not more dangerous. So it is not a fast spreader, is not clinically more dangerous. But whether it will be a problem for the vaccine or not, that is something that we have to confirm, because there are early reports that both of these mutations can have immune escape behavior, so which will be a concern for the vaccine. But if it was the actually happening, at least in our case, we would have seen by now some reinfection cases, which we are not seeing so far. So maybe it is less data, so we can't conclude very much, but early indications are that immunity acquired by prior infection and therefore by vaccination is protecting against this virus as of now. So more data will be required. There are experimental ways of figuring that out, which is to culture the virus in the lab and see if antibodies of vaccinated people or recovered people can neutralize this virus. And that's what we are doing. I'm sure many labs are doing in the country. We have started culturing this virus. In coming weeks, we will know if any protection of vaccine is compromised in this case, but that will take little time. Early indications are that we don't need to worry in that context yet. Sir, does government require more vaccines to control such mutant variants? It is always good to have see, vaccine is a weapon against the infection. So more weapon you have, better you are. These vaccines have come as an emergency approval, and within a year the vaccine is available, which most of us thought will not be possible. So that has happened. That's a remarkable achievement of industry, of scientists,
and also of our regulatory bodies who have gone so carefully and given these approvals, and they have been proven to be right because the vaccine is safe now. More than 5 crore people have taken vaccine, and people are doing well. And vaccine in UK is reducing the infection significantly. That observation has already been made. So it's a very good tool. More is better. So because these vaccines are emergency approval, we don't understand full, particularly long-term effect of these vaccine or age group, other medical conditions, how long they will protect, which variant, which one will protect. All those data will emerge only after post-vaccination follow-up, which is happening in many countries, including in our country. And in coming months, we will understand more about the utility of different vaccines. If someone is better for one vaccine is better for younger people, other vaccine is better for older. We don't know today, but we might understand it in coming months. So therefore, it is very good idea to have more vaccines. We should have 6-10 vaccines so that we ensure that pandemic is controlled and we don't get into more problems in future. And not only that, in fact, we should try and vaccinate with very high rate, largest number of people possible. So if we have enough doses, then we should, before virus recovers and makes more variants, we can eliminate the virus by vaccinating large number of people. So that is a good strategy to follow. And while we do all this, whether vaccination or no vaccination or anything, the COVID appropriate behavior is the most important, most crucial point today. So even if we are vaccinated, it takes a month, month and a half to get full effect of the vaccine. And the vaccine doesn't mean that you will not get infected. It means that you will not fall very sick and you don't may not have to go to hospital, and there will be, I mean, lives will be saved, but virus may still hang around. So therefore, most important thing is to wear mask, avoid clustering, and do hand hygiene. That if you do carefully, if all of us practice this, no matter which variant it is, we can take care of it, because variant cannot penetrate the mask or travel more than few meters to go and infect, unless we are clustered in a hall and infected people are spreading there. Sir, how such mutant takes place? So mutation is a natural process of these viruses, like is common flu. You see that every year we get sardi jukam, maybe twice, thrice. So it's the same virus, but once it comes, our system fights it, and within a week, 10 days, we get rid of it. But after a few months, it changes its coat and comes back and infects us again. So it is the same thing happening with coronavirus, COVID-19 virus as well. It keeps changing. It's a very natural. In fact, all of us, you and I, are different because our ancestors have some mutation which we have inherited. That's why we look different. All of us have genomic changes. They are originated with a mutation at some point or other. And mutations, if they are good for the species, then they persist, and if they are bad, then we perish. Similarly, in the virus, if mutation is bad, it will be that particular virus will die. And if the virus is in mutation is advantageous for the virus, it will adapt better and is spread more. So it is a natural process of all the living being. That's why I see variety in life. In But virus, in it happens future, very it fast. can be deadliest also, sir, if we will not take care of, especially Yes, following yes. the guidelines. Yeah, absolutely, absolutely. If we let like lakhs and lakhs people are infected and virus is having a good time spreading all over, so it will generate a more variant. That is no doubt about that. And maybe we are lucky that the double mutant is not very dangerous at the moment, but in future, over this platform of double mutant or independently, some other variant may emerge that may be more infectious, that may not respect vaccination, that may cause more mortality. All those things are possible. Therefore, get rid of this infection most, I mean, to large extent. Better we are. Otherwise, everything will fail after a point. So our contribution is very, very important, which is mask, social distancing, and hygiene in getting in defeating this virus.
Thank you so much, sir, for sharing such an important information with us on medically speaking. As everybody knows, the thing which is important to be followed, that is social vaccines. Since a year, we are learning about this virus, and we are just learning, but nobody knows why this is happening. But we can stop this by following the guidelines, that is social vaccine. Thank you, Dr. R.K. Mishra, for joining us, sir. Thank you, pleasure. नमस्कार, आईटीवी नेटवर्क्स मेडिकली स्पीकिंग में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक अहम गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं, यानी कि डॉक्टर राकेश मिश्रा। डॉक्टर राकेश मिश्रा डायरेक्टर हैं सीसीएमबी सीएसआईआर लैब के। जी हाँ, डॉक्टर राकेश मिश्रा पहले भी हमें जिस तरह के वेरिएंट्स लगातार भारत में मिल रहे हैं और ये कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और इनसे कैसे बच सकते हैं, इस तरह की अहम जानकारी दे चुके हैं। ऐसे में जबकि भारत में लगातार मामले दोबारा से बढ़ने लगे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो आया है ये क्या है और इससे देश को कितना ज्यादा खतरा है। डॉक्टर राकेश मिश्रा सर, ये बताइए कि ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है आखिरकार ये है क्या? डबल म्यूटेंट जो वेरिएंट है, जैसे कि नाम से पता चला, म्यूटेशन, इसमें 2 म्यूटेशन हैं जो कि इसको डिफाइन करते हैं। इस वेरिएंट को म्यूटेशन होता है किसी भी जीव के जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज हो जाते हैं परमानेंट और वो इनहेरिट होते हैं, उनको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और इस वायरस में एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये म्यूटेट तेजी से होते रहते हैं, तो अपना ये आचार व्यवहार बदलता रहता है, इसलिए हमको परेशानी होती है। इसके लिए दवा, वैक्सीन, इन सब चीज़ों के लिए। तो उसी तरह से ये जो डबल म्यूटेंट है, ये 2 जगह पे इसके जीनोम में चेंज हुआ है, जिससे कि इसको हम एक नया वेरिएंट बोल रहे हैं। वो डिफाइन होता है इन 2 चेंजेस की वजह से, एक 252 पोजीशन पे और एक 452 पोजीशन पे, और दूसरा जो है 484 पोजीशन पे चेंज है इसका। तो वो तो टेक्निकल है, लेकिन ये जब दोनों एक साथ रहते हैं तो उनको हम नया वेरिएंट बोल रहे हैं। इसका एक नाम भी होगा बाद में। और ये खास करके महाराष्ट्र में देखा गया कि करीब 20% जो केसेस हैं नए आ रहे हैं, उनमें से 20% के करीब ये डबल म्यूटेंट है, ये वाला वेरिएंट है। तो अब इससे खतरा कितना, ये अभी पूरी तरह से पता नहीं चल सका है, लेकिन इतना हम ये देख रहे हैं कि जो केसेस अभी बढ़ रहे हैं अचानक से कई जगहों पे, महाराष्ट्र में भी, उनके पीछे इसका कुछ खास योगदान नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ पे कि 20% का मतलब 80% केसेस अलग तरह से बढ़े हैं, इसकी वजह से नहीं बढ़े हैं। और दूसरी चीज़, और भी जगहों पे जैसे पंजाब में या केरला में या और प्रदेशों में जहाँ पे कि केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे डबल म्यूटेंट बहुत कम है, 1-2% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी अभी केसों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके पीछे ये इस वेरिएंट का कोई योगदान नहीं। उसके पीछे हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि सर, म्यूटेंट की जो वजह है वो ये है कि जो लोगों ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, मास्क ना लगाना, चीजों को ग्रांटेड ले जाना, सैनिटाइज ना करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन ना करना, ये एक वजह हो सकती है। हाँ, म्यूटेंट बनने के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे ये वजह है। ये जो आपने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोकल ट्रेन चल पड़ी हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लोग शादी में बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं, तो इन सब से लोग क्लस्टर हो रहे हैं एक दूसरे के पास। और वो जैसे कि आपने एकदम वाजिब बताया कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो इससे वायरस को मौका मिल रहा है फैलने का, और वो फैल रहा है। और जब ज़्यादा फैलेगा वायरस तो उसको ज़्यादा मौका मिलेगा और वेरिएंट बनाने का, म्यूटेंट होने का, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक ये चलता रहेगा, तो नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। और अभी तो हमको ये डबल म्यूटेंट दिखा है, जो कि हमने नोटिस किया है। खास अभी इससे कोई खतरा हमको नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है कि अगर हम ऐसे ही वायरस को बढ़ावा देते रहे लापरवाही करते हुए, तो ऐसे वेरिएंट भी आ सकते हैं जिससे हमको परेशानी उठानी पड़ेगी इससे ज्यादा। सर, ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, ये 2 तरह के आपने जैसे कि बताया वेरिएंट से मिलकर बना है। इसमें एक वेरिएंट यूके वेरिएंट भी है।
Can you hear me, sir? Sir, you are not audible. आप हाँ, अब आवाज आ रही है सर? हाँ, आपने जो सवाल पूछा वो हमने सुना नहीं, फिर से उसको पूछिए। हाँ सर, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कि यूके वेरिएंट है एक पहले से ही, जो कि हमारे देश में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसके मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर पंजाब में भी आया था कि लगभग 81% जो मामले हैं उनमें यूके वेरिएंट मिला है। तो ऐसे में जो ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, तो क्या ये इन दोनों वेरिएंट को मिलकर बना है? खासतौर पर यूके वेरिएंट की बात करें या फिर साउथ अफ्रीका की बात करें? नहीं, इसका साउथ अफ्रीका या यूके वेरिएंट से कोई लेना देना नहीं, ये एकदम से अलग है। जो यूके वेरिएंट यूके से आया हुआ है, ये जो वेरिएंट है इसमें जो दो म्यूटेशंस हैं, एक तो पहले से पता था, वो यूएसए में कैलिफोर्निया में देखा गया था काफी मात्रा में, लेकिन क्या ये नाम है वहां से सर आया। इसका? इस म्यूटेंट का क्या नाम है सर? इसको 452 लोकेशन पे है ये। ओके। तो L452R इसको एक्चुअली बोलते हैं। तो ये जो म्यूटेशन है पहले देखा गया था, लेकिन यहाँ पे ये ओरिजिनली बना या वो अमेरिका से आया हुआ था, उसके ऊपर दूसरा वाला म्यूटेशन बन गया और ये डबल म्यूटेंट चल रहा है तब से। ये बताना मुश्किल है, बहुत मतलब ज़्यादा उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि उन दोनों की ओरिजिन किस क्रम में हुई है। लेकिन इनका यूके वेरिएंट से कोई मतलब नहीं है। और जैसे मैंने बताया, यूके वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा फैलता है, लेकिन इससे डबल वेरिएंट नहीं लगता कि ये ज़्यादा फैलता है। लेकिन ये इसमें और कोई नुकसान है इससे हमको नहीं, जैसे केसेस और सीरियस होंगे या मॉर्टेलिटी बढ़ेगी, ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि हॉस्पिटल से जो डेटा आ रहा है उससे एसिम्टोमेटिक लोग ज़्यादा हैं और मॉर्टेलिटी कम हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्टेलिटी कम होने के कारण ऐसा नहीं कि स्ट्रेन हो सकता है या वेरिएंट, और मॉर्टेलिटी कम हो गई क्योंकि हम अच्छी तरह समझते हैं इस डिजीज़ को, तो डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छी देखभाल कर सकते हैं। तो क्लिनिकली भी इसका कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। वह एक यही चीज़ देखना है हमको कि ये वैक्सीन के लिए ठीक रहेगा कि वैक्सीन के लिए प्रॉब्लम खड़ा करेगा। बिल्कुल सर, दो जो चीज वैक्सीन इस वक्त हमारे पास मौजूद है, खासतौर पे हम बात करें कोवैक्सीन की, कोविशील्ड पर, वो उन इन वैक्सीन पर इसका कुछ असर पड़ता है या नहीं, या फिर अभी आपको ऐसा लगता है कि भारत को और भी वैक्सीन जो है उनकी जरूरत पड़ेगी या फिर मंगा लेनी चाहिए? अभी ये नहीं पता है कि ये जो हमारे यहाँ जो दो वैक्सीन है या और जो बाहर की वैक्सीन है उसके वो इसके लिए प्रभावशाली होंगी कि नहीं। वो उसका एक्सपेरिमेंट होता है, वो हम कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है, 2-3 हफ्ते में हमको पता चलेगा, क्योंकि इस वायरस को हम कल्चर कर रहे हैं लैब में, और उसके बाद हम उसका न्यूट्रलाइजेशन ऐसे करेंगे वैक्सीन जिनको दी गई उनसे या पुराने जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनके प्लाज्मा से, तो वो पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये पुराने इम्यूनिटी को इग्नोर करके इन्फेक्ट करता, तो अब तक शायद री इन्फेक्शन केसेस हमको देखने को मिलते, क्योंकि वो नहीं आए हैं अभी तक। और ये भी हो सकता है क्योंकि अभी हमने ज़्यादा देखा नहीं है, और जब ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग होगी तो शायद कुछ दिखे, लेकिन अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि वैक्सीन के बारे में भी कोई समस्या होगी। लेकिन आपने ठीक कहा कि हमको जितनी भी ज़्यादा हो सके, अभी हमारे पास 2 है, बाहर से और भी 2-4 अगर आ सकती है, हमारे रेगुलेटरी बॉडी उसको मेरे ख्याल से प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कौन वैक्सीन कितना देर तक काम करेगी, कितने एज ग्रुप के लिए कौन सी अच्छी रहेगी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे इमर्ज होंगी। अभी तो 1 साल के अंदर वैक्सीन मिल गई, लोग कम से कम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब अगले आने वाले महीनों में, सालों में जो डेटा होगा उससे ये पता चलेगा कौन सी वैक्सीन किसके लिए और कब देना चाहिए, ये सब धीरे धीरे रिफाइन होगा। तो ज़्यादा वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, वही एक अच्छा तरीका है हमको इस पैंडेमिक से बाहर निकलने का। और सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको करें, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर वैक्सीन का भी कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब कि मास्क और क्लस्टरिंग बचाना और हैंड हाइजीन, ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो
वायरस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं सर ये जो नया म्यूटेंट वेरिएंट है इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। देखिए, वायरस सिर्फ एक वजह से एक ही तरीके से फैलता है। एक आदमी जो इन्फेक्टेड है वो दूसरे आदमी को दे रहा है और दूसरा आदमी उसको ले रहा है। मतलब कि मास्क बिना लगाए हम टहल रहे हैं। अगर हम मास्क लगाएंगे तो वो कोई भी वेरिएंट हो नहीं जा सकता है कहीं। तो हम तो इसके लिए लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम ऐसे वायरस को फैलते रहेंगे, फैलने देंगे तो वेरिएंट पैदा होंगे, क्योंकि ये वायरस का नेचर है, ये उसका स्वभाव है कि वो चेंज करता रहता है, वो होता रहेगा। और इससे भी और खतरनाक वेरिएंट बन सकते हैं अगर हम ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो, क्योंकि भारत बिल्कुल में सर, बहुत सारे अभी लोगों को डबल म्यूटेंट है, आने वाले समय में ट्रिपल भी म्यूटेंट पैदा हो सकता है। बहुत हो सकते हैं इसके ऊपर, ऑलरेडी हो रहे हैं। तो हमको उनको बचाने के लिए ये जो मास्क जो है बहुत ज़रूरी है। ये तो सब लोगों को एकदम गांठ बांध लेना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है हमको। सर बहुत बहुत धन्यवाद आईटीवी नेटवर्क्स मेडिकली स्पीकिंग से बात करने के लिए, क्योंकि ऐसे में जो जरूरत है वो यही है कि म्यूटेंट तो बदलते रहेंगे और वायरस बैक्टीरिया की जो लड़ाई है ह्यूमन से वो आज की नहीं है, वो सदियों से चली आ रही है। ऐसे में जो चीज जरूरी है वो ये है कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, यानी कि सोशल वैक्सीन जो है वो बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आईटीवी नेटवर्क से बात करने के लिए। धन्यवाद सर।